ਤਾਂ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਸੀ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਗॉड ਡੈਮ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ खूब चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟੋਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਖੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਗਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MF ਗੱਭਰੂ। ਉਹ MF ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। MF ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਮਦਰ। F ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ FIR ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ माफी उन्होंने ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ली गई है। खैर चर्चा की शुरुआत करते हैं। रॉकी मित्तल जी, आपको लगता है कि ये बहुत कड़ा एक्शन जरूरी है इसमें? हमारे साथ पहले सुखी विराट जी जुड़ी हुई थी, उन्होंने जिक्र कर दिया कि हाँ ये तो 5-6 साल के लिए बैन ही कर दीजिए, गाना ना गाएं कोई बादशाह। आपको लगता है कि एक सिंगर के साथ ऐसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है, जो स्कूल की बच्चियों ने अपने स्कूल बैग फेंक कर डांस शुरू किया जी, इसका मतलब हुआ कि स्कूल में बच्चियां जाएंगी, स्कूल बैग साइड में फेंकेंगी और रीलें बनाएंगी। बच्चियां पढ़ेंगी कब? क्या गणपति गानों पे हमारी बहन बेटियां अब रीलें बनाएंगी, डांस करेंगी? अब ये कहता है कि मैं हरियाणा का हूं, मैं नहीं मानता कि हरियाणा का ही। और रहेगी अनिल विज जी की बात, अनिल विज जी की आज मैं वीडियो बना के आया हूं, मैंने अपने चैनल पे डाली है। वो उन्होंने सख्त आदेश दिए, मेरे सामने दिए जी, एक बक्सा नहीं जाए जिन लोगों ने भी रोडवेज की बस के ऊपर डांस किया है। आपके पास जानकारी है कि विदाउट परमिशन किया गया वो? छोड़ दिया जाए। कोई परमिशन नहीं है। फौजी के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, वो भी तो वाइस चेयरमैन है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि जिन्होंने बस के साथ, क्योंकि शूट करने के लिए भी ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में शूट हो गया होगा, शूट के लिए तो प्रॉपर टाइम चाहिए होगा कि वो बस वहां पर रुकी हुई थी, वो जिसने परमिशन दी वो भी फिर क्वेश्चन मार्क है। उसकी बीवी जिला परिषद की मेंबर है जी। मैं मेरे कैथल का, मैं भी कैथल का रहने वाला हूँ। तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, समाज को भी आवाज उठानी चाहिए जी। क्या जितनी टीम है उसको सारा पता होता है कि गाने की वर्डिंग क्या है। जब शूट किया जाता है तो कैमरामैन भी सुनता है कि गाने की वर्डिंग क्या है। बिल्कुल। बिना परमिशन बसें कहां से आ गई? स्कूल की ड्रेस का इस्तेमाल हो गया, स्कूल का इस्तेमाल हो गया, पूरी हरियाणा। देखिए स्कूल का इस्तेमाल, स्कूल की ड्रेस का इस्तेमाल करना, उसके ऊपर मैं सुमन जी का एक बार रुख करता हूं। सुमन जी, इन चीजों के ऊपर भी एतराज होना चाहिए। देखिए मैं बहुत सारे पुराने गाने याद करूं तो उसमें है कि जहां पर लड़कियां कोई कॉलेज या स्कूल की ड्रेस डाली हुई नजर आती हैं। कॉलेज की तो मेरे को बहुत सारी याद है, इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज हैं
कि स्कूल के अंदर, मैं पंजाब की कुछ मूवीज का जिक्र करूं कि स्कूल में लड़का लड़की मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उनमें एक रिलेशन बन जाता है, ऐसी चीजें तो फिल्मों में बहुत आम सी दिखाई जाती है। तो इस स्पेसिफिक गाने में ड्रेस दिखाने पर क्यों इतराज है? नहीं, ड्रेस दिखाने पर ऐतराज नहीं है, हमें ऐतराज है कि ड्रेस के साथ किस तरीके की पिक्चराइजेशन आप कर रहे हो। ड्रेस पहनकर आप एक गलत चीज पेश कर रहे हो समाज के सामने, उस पर ऑब्जेक्शन है। आप अगर एक ड्रेस पहनाकर बच्चों के लिए एक अच्छी सामाजिक सांस्कृतिक चीजें पेश करते हैं तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है। बहुत सी पिक्चरों में ऐसे क्या पुराने गाने नहीं होते, बच्चों के खूब गाने आए हैं, पहले भी आए, पिक्चरों में भी आए हैं, सब जगह आते रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप एक गंदगी पेश करो, एक बच्चों के माइंड में आप गलत चीजें घुसा रहे हैं, उस पर ऑब्जेक्शन है। और उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि बादशाह जैसे सिंगर अगर इस तरीके की घटिया हरकतें कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आप पिक्चर, यूं तो स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह आप देखिए मूवीज बनती हैं और वहां पर ड्रेसेस का यूज भी होता है, लेकिन वो ये नहीं है कि भाई आपको गलत है। गलत सिर्फ वहां है कि आप दिखा क्या रहे हैं, आप क्या पेश कर रहे हैं। आप समाज में देखिए, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब है, ये आपको गंदगी परोसने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। यूट्यूब का या सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ गंद परोसे। आप इसमें जो है, कई बार तो ऐसा होता है कि आप नॉर्मली भी फोन खोल रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं। मैं तो हमेशा से ये कहती आई हूँ कि ये चीजें जो है बैन होनी चाहिए। समाज में अगर हम एक तरफ मानसिकता और भावनाओं को बदलने की बात करते हैं, जैसा कि हमारी बहन ने भी, साध्वी जी ने भी कहा कि हमें जो है, हम ये जो अपराध को रोकने की जो कोशिश हमारे संगठन करते हैं, हम लोग करते हैं, और ऐसे लोग उनको बढ़ावा देकर हमारे करे कराए पर पानी फेरते रहते हैं। तो समाज में जो अपराध रोकने की प्रक्रिया है वो कैसे रुकेगी? आप जैसे अगर नामी आदमी और आप जैसे जो अपने आप को बादशाह का नाम खुद ब खुद रख लेते हैं, ऐसे लोग जिनको दुनिया बादशाह नहीं बना रखा, खुद ही नाम रखा हुआ है। किसने बनाया इनको बादशाह? किसी ने नहीं बनाया। बादशाह का मतलब ये थोड़ी ना कि समाज कोई राज्य महाराजे परिवार से आ गया। ये ऐसे थोड़ा 4 गाने हिट हो गए तू बादशाह बन गया, और किसी भी लड़की को और किसी की बेटी के ऊपर तुमने किसी को भी किसी तरीके से पेश कर दिया। आपको तमीज होनी चाहिए कि किस तरह के बच्चों से आप या बड़ों से या किस तरीके की महिला और बच्चियों से बात कर रहे हैं, आप क्या पेश कर रहे हैं, और फिर माफी मांग के आप अपना घिनौना चेहरा दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। किस बात की माफी मांग रहे हैं? आपको नहीं पता कि क्या गाने की वर्डिंग, जब आपने इसको लिखा किससे लिखवाया आपने, और उस गाने को आपने पिक्चराइजेशन कर दिया, उसके बाद आपने वायरल भी कर दिया, आपका आ भी गया, लॉन्च भी हो गया। लॉन्च होने के बाद भी आज आप हमें कह रहे माफी मांग लेता हूं मैं, है क्योंकि ये गाना, और जो आप कह रहे थे ना सर, एक चीज और मैं इसमें बताऊं, आप जो कह रहे थे इसमें लाइक है, वो लाइक इसलिए नहीं है। क्या हुआ, इसने जो गाने की स्टार्टिंग ली है, आप सुनिएगा, वो गाने के स्टार्टिंग पुराने हरियाणवी गाने को उठाया इन्होंने, और जो टटीरी गाना है ये हमारा बहुत पुराना और हमारा हरियाणवी गाना जो बहुत खूबसूरत है, उसकी वर्डिंग से स्टार्ट किया है, ताकि आदमी शुरू में स्टार्टिंग देखेगा, अच्छा म्यूजिक देख के देखना शुरू होगा। तो ये लाइफ जो है उसको नहीं मिल रही, उसके रैप को जो बीच में उसने घुसाया है। हरियाणवी टटीरी गाना एक हरियाणवी बहुत खूबसूरत पुराना हमारा गाना है, उसकी जो है ये पसंदीदा हो सकती है, लेकिन ये गंदगी जो रैप के रूप में इसने घुसाई है, ये इसके दिमाग की गंदगी है। इससे इसके दिमाग का पता चलता है कि ये अपनी बच्चियों तक को छोड़ने वाला भी नहीं है। इस तरीके से अगर ऐसी सोचे, क्या इसके घर परिवार में बच्चियां नहीं है? इसको ये नहीं पता चल रहा है आपकी बात। लेकिन देखिए, बात यह है कि बादशाह आकर माफी मांगते हैं, तो क्या वो माफी काफी समझी जाए? इस डिबेट में तो ये लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को भी साथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਏ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं एक बारी साध्वी का रुख कर लूँ। साध्वी जी, आपको ये लग रहा है कि ये वेल प्लान्ड है, कोई गलती की वजह से नहीं है? कोई ऐसा नहीं है कि शायद उनको पता नहीं था कि ये मतलब क्या है या विवाद कितना बड़ा हो जाएगा? तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड पता था और उसके बाद इसको डाला गया उसमें?
ये बादशाह छोटा सा बच्चा है 10-12 साल का, कि इससे गलती होगी या ये नाबालिग है, भूल होगी, या फिर इसने ऐसे ही किसी के साथ हरकत कर दी, इसको पता नहीं चला, इसकी नॉलेज कम थी। आपको पता है आपके देश के अंदर पंजाब और हरियाणा के अंदर बड़े बड़े कलाकार हुए जी, केस जीवनपुर जैसे हुए, राममेर मेला जैसे हुए, और भी पुराने कलाकार हैं जिन्होंने संस्कृति और धर्म को बचा के रखा। ये कहाँ से कलाकार आ गया? मुझे तो लगता है इसका कोई सॉन्ग, कोई गीत मैंने तो आज तक नहीं सुना। हनी सिंह का और बादशाह का आपस में आज इसने एक वर्डिंग यूज किए कि हम लोग आपस में बहस करते हैं, हम आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। हनी सिंह उसको दिखाता है, वो हनी सिंह को दिखाता है, फिर भी घोड़ी बनने की बात किसको कर रहा है? हनी सिंह से कर रहा है। और आज उसने स्पेशल अपने रैप के अंदर कहा, आ रहा है बादशाह सबको गोटी बनाने। सबको में तो उसकी माता जी भी आती है, उसकी बहन भी आती है, उसकी बेटी भी आती है, हरियाणा में उसकी पत्नी भी रहती है, सब रहते हैं उसके परिवार के लोग। और जहां तक मैं जानती हूँ उसके चाचा ताऊ परिवार एक कलसी गांव में सब लोग रहते हैं। तो ऐसे लोग, आपको नहीं लगता इनसे कोई बेटी सुरक्षित हो सकती है? ठीक है, चलिए मैं एक दो कॉलर्स को साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं ताकि लोगों से भी जान सकेंगे उनकी क्या राय है। हमारे साथ जगमीत सिंह जुड़ रहे हैं बठिंडा। तो है, खतरा है, कैंसर है। ठीक है, और ये चलिए मैं आपसे एक एक कमेंट जरूर लूंगा, हमारे पास पीछे समय भी कम होगा। मैं कुछ अपने दर्शकों को भी साथ जोड़ना चाह रहा हूं। जी, जगमीत सिंह जी बठिंडा तो नहीं, ओमकार सिंह जी रोपड़ तो नहीं, पहला बठिंडा का रुख करते हैं। जगमीत जी बहुत बहुत स्वागत है, की कहना चाहोगे? गाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਹਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁੰਮਾ ਚੁੰਮਾ ਦੇ ਚੁੰਮਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਿਹੰਗ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਗੇ ਪੱਗਾਂ ਪੋਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹੀ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਮਕਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਰੋਹਤਕ ਪਾੜੀ ਭਵਾਨੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਡ ਪਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਾਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਓਮਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं रुक करदा ਸਾਡੇ ਨਾਲ सुमन दहिया जी लगातार जुड़े हुए ने। सुमन जी, एक कॉलर ने एक बात कही, उन्होंने बहुत सारे गानों का जिक्र कर दिया। अब लोग ये भी कहेंगे कि अमिताभ बच्चन ने हम मूवी में उस गाने को फिल्माया, उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई जितनी आज बादशाह के ऊपर हो गई। और बहुत क्लियरली जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो भी वल्गैरिटी वाली तरफ तो था ही। जी बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा कि ये जो गाने जो गंदगी पेश कर रहे हैं इन पर बैन होना चाहिए। लेकिन ये जो बादशाह वाले गाने का हम इसीलिए पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो ये हरियाणा से संबंधित गाना ले लिया इन्होंने। दूसरी बात, हरियाणा के लोग जो कि बहू बेटियों के मामले में सबसे ज्यादा सख्त हैं। आप देखिए, कभी अगर किसी की बहन बेटी के साथ कुछ हो जाता है तो हमारे यहाँ पूरा गांव का गांव खिलाफ होके और उसका इलाज बांध देता है। और हमारे यहाँ पे हरियाणा की कल्चर ये नहीं है। आपको मैं बताऊं, पूरे देश में से अगर बात करें हम हरियाणा की तो हमारे यहाँ तो भाई कत्ल कर देते हैं बहन की तरफ कोई गलत देख भी ले। और ये तो सरेआम बोल रहा है, ये तो कह रहा है मैं करने आ रहा हूँ, जैसे कि गाने की वर्डिंग है। तो हमारे यहाँ तो कत्ल हो जाते हैं। चलिए, मेरे साथ एक और खास मेहमान अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूँ। रेनू भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, चेयरपर्सन है विमेन कमीशन हरियाणा की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा इस पूरे मुद्दे के ऊपर कर रहे हैं, बादशाह के गाने के ऊपर।
क्या एक्शन आपकी तरफ से, क्योंकि सुमोटो आपकी तरफ से भी नोटिस लिया गया इसका, क्या एक्शन होना चाहिए और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, अगर आप लोगों को बता पाए? रेनू भाटिया जी, मेरी आवाज आ रही है? चल, लग रहा कि ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਪੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ Song ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ रेनू भाटिया, चेयरपर्सन है विमेन कमीशन हरियाणा दे। मैम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के ऊपर। मेरा पहला सवाल यही है कि बादशाह के गाने को लेकर कंट्रोवर्सी तो ऑलरेडी बहुत है, FIR भी हो गई है, विमेन कमीशन इस पूरे मामले को आगे कैसे लेकर जाएगा? देखो, ये विवाद जिस दिन दा शुरू होया उसी दिन विमेन कमीशन ने इस केस नू लिता है जी। पहले सुमोटो लिता सी, उसके बाद हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है थोड़ी? आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रही हूँ, जिस दिन सानू ये पता लग्या और असी गाना सुनिया, असी उसी टाइम सुमोटो लिता और इमीडिएट समन किया इन्हां नू 13 तारीख दी डेट दे के जी। हुण चाहे वो भावें पे माफिया मंगन, इस तरीके दी माफी एक्सेप्टेबल नहीं है। He will have to come on 13th as we summoned him. He will have to explain why he did this. ਹੁਣ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾ ਹੋਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਸਖਤ ਹੈ और बिल्कुल तब तक इसका कोई प्रोग्राम हरियाणा नहीं होने देगा जब तक एक कमीशन आके माफी नहीं मंगणगे और ये गाना इन्हां दा बंद नहीं होएगा। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, YouTube ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਲਾ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ YouTube ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਦਈਆ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਮਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਬ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 2-4 ਦਿਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫਾ ਦਫਾ, ਫਿਰ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ
पूरे देश विच ਇਹ ਤਾਂ शुरुआत हुई है हरियाणा तो पूरे देश ਦਾ किसी भी भाषा ਦਾ कोई भी कलाकार होएगा वो जुर्रत नहीं करेगा बेटियां ਨੂੰ इस तरह नीच दिखाने दी और इस तरह की भाषा बोलने दी। अन्यथा किसी भी देश किसी भी प्रदेश विच होएगा उसकी खिलाफत उसी तरह की जाएगी जिस तरह हरियाणा है, क्योंकि बेटी चाहे किसी भी प्रदेश की होवे, किसी भी जाति दी होवे, किसी भी रंग दी वर्ण दी होवे, और बेटी बेटी ही होंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया रेनू भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे विच शामिल होण दे लई। मेरे को पिछे टाइम घट है, मैं एक कमेंट जरूर सुमन जी और साध्वी जी तुहाडे तो लवांगा। पहला साध्वी देवा ठाकुर जी, विमेन कमीशन की स्टेटमेंट आप तक पहुंची होगी, आपको लगता है कि हाँ उम्मीद की जा सकती है कि कोई ना कोई कड़ा एक्शन होगा? देखिए, मैंने मैडम भाटिया की बात सुनी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, पर उन्होंने कहा माफी नहीं मांगता। माफी मांगना काफी नहीं है भाटिया मैडम, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए और ये सलाखों के पीछे जाना चाहिए, चाहे भले वो बादशाह हो और चाहे वो शहंशाह हो, मंत्री हो, कोई भी हो। इसका मतलब ये थोड़ा है कि माफी काफी है। माफी काफी नहीं, बेटी आप बेटी। तो एक लाइन पर बहुत क्लियर है कि माफी काफी नहीं है। चलिए, मेरे पास समय खत्म हो चले हैं। सुमन जी, मैं आपसे एक आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्योंकि आपने विमेन कमीशन के साथ आप जुड़ी रही हैं, कितनी पावर होती है ऐसे केसेस में कि विमेन कमीशन इस केस को कहां तक लेके जा सकता है और कैसा एक्शन किसी इंडिविजुअल के ऊपर जिसके ऊपर ऐसे आरोप हो कर सकता है? देखिए, मैंने अभी रेनू भाटिया जी की बात सुनी। पहली बात तो जो मेरा व्यू है, अगर मैं महिला आयोग की चेयरपर्सन हूं तो पहली बात तो ये है कि एफआईआर उसमें ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, तो उनका पहले तो उन्हें ये देखना चाहिए कि एफआईआर क्या वो सही सेक्शंस में दर्ज हुई है, या जैसा कि अगर पॉक्सो बनता है या उस पर क्या है उसको एड ऑन किया जाए, जो भी है, या वो सेक्शंस ठीक लगे हैं या ना लगे हैं उनको चेक करें। दूसरी बात, इन्हें सिफारिश यहाँ बुलाने की या माफी मंगवाने की नहीं है, उनका काम है, एफआईआर हो चुकी है, डीजीपी को सीधा बोले कि हमें तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्टिंग चाहिए। ये स्टिक एक्शन बनता है, ये ना कि भाई मैं नोटिस दूंगी 1 हफ्ते का या 4 दिन का 5 दिन का, वो कब आएगा, कब वो आके, वो तो माफी मांग ही रहा है, वो आके मांग लेगा माफी। माफी मांगने में तो उसे पता है उसका सारा इस तरीके से जो कार्य किया है वो माफी मांगने से अगर खत्म होता है, तो इस चीज को मैं ये मानती हूँ, माफी मांगने के लिए उसने ओपनली मांगी है माफी, तो माफी मांगने से कार्य नहीं हो रहा, उसकी अरेस्टिंग चाहिए हमें, और अरेस्टिंग के लिए भाटिया मैडम को चाहिए कि जाए डीजीपी साहब को बुलाए या फिर डीजीपी साहब के ऑफिस में खुद जाए, जाकर उसकी अरेस्टिंग तुरंत प्रभाव से हो, ताकि उसको ये पता लगे कि ऐसे गाने गाने से, पिक्चराइजेशन करने से आपका नतीजा। चलिए, विवाद भी होता है और जी ऐसी चीजों के बाद माफी से बात भी नहीं बनती। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई सुमन दैया जी, तुहाडा भी, साध्वी देवा ठाकुर जी तुहाडा भी धन्यवाद, सारे दर्शकों का भी धन्यवाद। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा दे विचों एक चीज तो निकल के सामने आउंदी है कि बादशाह दे लई इस बार एक गाना दिक्कतां खड़ियां कर रहा है, ते दिक्कतां सिर्फ माफी दे नाल दूर हुंदियां नजर नहीं आ रही। हुण बादशाह दी लीगल टीम भी डेफिनेटली इस पूरे मुद्दे उत्ते नजर रख रही होएगी, हुंदा की है वो एक अलग गल है, पर कि वाकई इस गाने तो बाद एग्जाम्पल सैट हो जाएगी कि नहीं, गाने दे शब्दां दे उत्ते 100 बार सोचो, क्योंकि करोड़ों बार लोगों ने सुनना है, करोड़ों लोगों तक पहुंचना है। लग रहा है कि हाँ सिंगर्स इस पासे जरूर ध्यान देंगे। प्राइम टाइम चर्च दे रहे हैं। धन्यवाद।